Consumption is the second element of aggregate demand, and it is defined as value of goods and services that households are able and willing to buy. And households are families, so if family is able and willing to buy some particular goods and services, then it will be defined as consumption. It refers to the total expenditure incurred by all household on purchase of the goods and services in the economy. So अगर हम सारी फैमिलीज के एक्सपेंडिचर को कंबाइन कर देंगे इंडिया में, तो वो एक टोटल एक्सपेंडिचर होगा, एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज द टोटल कंजम्पशन. Consumption function, it is a function of disposable income. That is C is equals to F into Y. Here C is consumption, Y is disposable income, and F is function. This relationship between income and consumption is called propensity to consume or consumption function. And what is disposable income? When personal taxes is deducted from personal income and the remaining income is disposable income. There are some factors which affect the consumption of household, that is income, rate of interest, wealth, liquid assets, expectation about future income, stock of consumer durables, consumer credit, and distribution of income. And now let us see how they affect the consumption. Income. अगर income level आपका कम है, if you are living in a poverty line, then आपका consumption कम होगा. अगर आप rich हैं, आपका जो income है वो ज़्यादा है, तो आपका कंजम्पशन लेवल भी ज़्यादा होगा, बिकॉज यू कैन अफोर्ड थिंग्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप कहीं से बोरो करते हैं, लोन लेते हैं या फिर फाइनेंस कराते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मे बी आप बोरो ना करें, क्योंकि आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हमारा कंजम्पशन लेवल अफेक्ट होता है, क्योंकि हमें अपना जो इनकम है, इनकम में से हमें एक पार्ट एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, तो हमारा जो स्पेंडिंग अमाउंट होता है वो कम हो जाता है. दैट इज वाई हमारा कंजम्पशन अफेक्ट होता है. वेल्थ, जैसे आपके पास लिक्विड एसेट्स होंगे, वेल्थ होगा, कम है तो आप कंजम्पशन कम करेंगे, ज़्यादा है आप कंज्यूम ज़्यादा करेंगे. एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इनकम, अगर आपकी फ्यूचर इनकम आपको पता चले कि फ्यूचर में आपकी जॉब जाने वाली है, तो आप अभी से सेव करना स्टार्ट कर दोगे. So expectation about future income, whether it is going to increase or decrease in future, affect our consumption level scenario. So stock of consumer durables, अगर हमारे consumer durables items हैं जो हमारी necessities हैं, दाल चावल आटा घी एक्सेट्रा, अगर उनके प्राइसेस हाई हो जाएं स्टॉक के वजह से, जैसे करंट सिनेरियो है, लॉकडाउन के वजह से काफी शॉपकीपर्स हैं, दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट हायर एमआरपी. तो क्या होता है, मैनी पीपल्स आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, दे आर नॉट बाइंग दैट प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस. ये भी हमारे कंजम्पशन को अफेक्ट करता है. अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंज्यूमर क्रेडिट, अगर हमारी इनकम लेवल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में, इसलिए लोग ज़्यादा गरीब हैं और अमीर लोग कम हैं, तो उसके वजह से गैप क्रिएट होता है. इसमें लोग हैं ना बिलो पॉवर्टी लाइन जो रह रहे हैं वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाते. ये भी हमारे कंजम्पशन को अफेक्ट करता है. Now, propensity to consume or consumption function. This relationship between income and consumption is classified into two categories. That is average propensity to consume and marginal propensity to consume. What is average propensity to consume? When portion of income devoted to consumption. हम यहाँ disposable income की बात कर रहे हैं. It is a percentage ratio of income which is spent on consumption. APC is equals to C divided by Y. That is total consumption divided by total income. When APC is larger than 1, then savings become negative. And marginal propensity to consume, it means additional increment desire to consume. It is the ratio of change of consumption to change in income. MPC is the part of additional income which is spent on additional consumption. MPC is delta C divided by delta Y. That is change in consumption divided by change in income. Okay, when MPC is greater than 0, increase in income is larger than a consumption expenditure, and when MPC is greater than 1, entire increase in
Properties of consumption function given by Keynes. There is direct relationship between income, that is disposable income, and consumption. If income increases, then consumption will also increases. When income is zero, then minimum level of consumption has to be made for survival. This is called autonomous consumption. अगर मेरी जॉब जा चुकी है, मेरी इनकम आज के टाइम पे जीरो है, बट मेरी पास्ट सेविंग्स है और मैं आज करंट सिनेरियो में अपनी सेविंग्स यूज करके कंजम्पशन कर रही हूँ, सरवाइव कर रही हूँ, जो कि बेसिक नेसेसिटीज है, मैं उनको अफोर्ड कर पा रही हूँ, दैट मीन्स मैं सिर्फ सरवाइव कर रही हूँ, मेरी इनकम जीरो है, वो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। ठीक है, मेरे पास सेविंग्स भी नहीं है, तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन के लिए हम किसी से बोरो कर सकते हैं। अगर हम बोरो भी नहीं कर रहे हैं तो इसमें हम गवर्नमेंट हमें रिलीफ प्रोवाइड करती है। When income increases, then consumption level also increases, but to a limited extent. That is, consumption expenditure does not increase at the same rate as income. This is called Keynesian psychological law of consumption. और इसको हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि मेरी इनकम 50,000 से 80,000 इंक्रीज हुई, बट 50,000 जब इनकम थी, आई वॉज सेविंग 20,000। जब मेरी 80,000 इनकम हो गई तो आई एम सेविंग 30,000। तो मेरी सेविंग के इंक्रीज होने से मेरे पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो रिमेनिंग इनकम है फॉर एक्सपेंडिचर, कम हो गई। तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, वैसे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज होता है, बट नॉट एज द सेम रेट एज इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम इंक्रीज हुई है 100 रुपीज से, देन द टेंडेंसी ऑफ अ मैन इज टू स्पेंड रुपीज 75 एंड सेव द रिमेनिंग 25। आई होप यू गॉट द पॉइंट। And property 3 is also expressed through MPC. When people did not spend their whole incremental income, additional income on consumption, then additional consumption is less than additional income. MPC is less than 1, and when consumption increases because of increase in income, then consumption is positive because of autonomous consumption, consumption for survival. MPC is larger than 0. MPC ranges from 0 to 1. Okay, now we are going to study or express MPC through a diagram. As you can see कि जो हमारी income line है, Z is the income line and C is the consumption function. On x-axis there is national disposable income, or we called it simply called as income, or on y-axis there is expenditure. As you can see from the origin, there is a line Z which is income line, and C line is above the income line to a point when Z and C is intersecting with each other. जो ये बीच का जो स्पेस है, जो C और Z intersect कर रहे हैं, उससे आगे वाला दिस स्पेस, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। हमारा इनकम तो कम है बट कंजम्पशन ज्यादा है। आप देख रहे हैं कंजम्पशन की जो लाइन है वो इनकम लाइन के ऊपर है। तो जब जीरो इनकम है तब कंजम्पशन है, हम सरवाइव कर रहे हैं अपनी पास्ट सेविंग से, या हम बोरो कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट हम इंटरसेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं। अब इस इंटरसेक्शन के पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी इनकम लाइन है वो कंजम्पशन लाइन के ऊपर है। दैट मीन्स हमारी जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन इंक्रीज तो हो रहा है, बट अगर हम इनकम से कंपेयर करें तो कम है। ये जो हमारा पार्ट है, आई एम गोइंग टू पेंट इट रेड। ये जो हमारा पार्ट है, दिस शोज द MPC when income is larger and consumption is also increasing but not as fast as income. हमारा जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज तो हो रहा है बट हम सेव भी ज्यादा कर रहे हैं। ओके,
तो जितना स्टार्टिंग में हमने ज़्यादा कंजम्पशन किया और जैसे जैसे आप देख रहे हैं इनके बीच का जो स्पेस इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं और इनकम हमारी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो जब ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगी, हम कंजम्पशन सेव करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं ज़्यादा यहाँ पर, यहाँ पर हम ज़्यादा सेव कर रहे हैं, सॉरी, हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं। yes. ओके, ये हमारा डायग्राम था कंजम्पशन फंक्शन एंड ऑन अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन हमारे सिलेबस में है, नॉन लीनियर भी होता है बट इट इज नॉट इन आवर सिलेबस।